स्क्रीन हो रही है शेयर? Okay, then we start our new class of international law from the series of international law classes. So till now we cover about the international law, its aspects, its source, its theories, its subject matter, and so many treaties also कि कहाँ कहाँ से international law form हुआ, इंडिया पे उसके क्या impacts रहे. Now we are specially discuss about the one of the major organizations of the international law is United Nations. यूनाइटेड नेशन क्या रोल प्ले करता है? अगर करंट एरा में हम पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, सोशल और इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन की इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे वी एफ आई डिस्कस, तो देयर इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज बी कम इन पिक्चर, ऑलवेज कम इन अ फर्स्ट रो, दैट इज द यूनाइटेड नेशन. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी फॉर्म द यूनाइटेड नेशन. और ऐसा नहीं था कि इट्स सडनली फॉर्म. जो लीग ऑफ नेशन जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन हमने पहले फॉर्म करा. लीग ऑफ नेशन का मेजर मोटिव था कि दोबारा से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने लीग ऑफ नेशन बनाया और उसका मेजर मोटिव था कि अब दोबारा से कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो. लेकिन बाई सब मिसफॉर्च्यून की हमें 1942 में ही दोबारा से एक और वर्ल्ड वॉर देखना पड़ा और 45 तक वो चला. आफ्टर द एंड ऑफ दैट वर्ल्ड वॉर 2 we are come with a new picture, new international policy and new international organization that is called the United Nations. Today we are going to discuss about the how the United Nations form, what are the treaties of the which are come in a lineup which are make the background of United Nations, कि कैसे किन किन treaties में इनकी चर्चा हुई. Then we make the United Nations. There are some of the major organs of the United Nations like Security Council, General Assembly, Trustship Councils, International Court of Justice. तो हाउ दे ऑल ऑर्गन्स आर वर्क एंड वी हैव टू बी मेजरली कंसर्न अबाउट द ट्रीटीज़ के ईयर्स की, उनकी सिक्वेंस क्या है जिससे यूनाइटेड नेशन बना. देन द वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट द ऑर्गन्स मेंबर. जो ऑर्गन है उनके मेंबर कौन है, कैसे नॉमिनेट होते हैं और क्या उनका मेन फंक्शंस है. First we come with the international organization. So if we are discuss about the international organization, there is just so many organizations like United Nations, World Trade Organization, International Monetary Fund, World Bank. These are the organizations which are work on an international level. Organizations are come with the mutual consent of the almost all nation of a world. सब नेशंस के मिला ऑलमोस्ट, या फिर कई बार कुछ स्पेशल नेशंस ने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर रखी है लाइक G20 रहा या फिर ब्रिक्स रहा. दीज आर सम ऑफ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन विच आर क्रिएट बाय द स्पेशल नेशंस. एशियाड कंट्री अलग रही, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज अलग रही. तो दैट आर द थिंग्स. अब इन ऑर्गेनाइजेशन ने मेजर रोल जो प्ले कर रहा है वो यूनाइटेड नेशन है. और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी कम विद द कंसेप्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इट्स स्पेशली कम विद द 26 जन 1945. जो 26 जनवरी 1945 को सैन फ्रांसिस्को में वी फर्स्ट क्रिएट द यूएन चार्टर एंड वी डिसाइडेड विद द 51 कंट्रीज ऑफ अ नेशन दैट वी विल बी मेक अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन हु विल बी पॉलिटिकली सोवरेनिटी एंड द सुप्रीम विद द ऑल इंटरनेशनल ऑर्गन्स, all international nations, and to come and give their power, give their consent to establish the peace all over the world. Main motive is only just about the establishment of the peace, establishment of the social welfare, establishment of the equality, establishment of the human rights. That is the motive of the United Nations. With that motive, first we concerned about the 26 Jan 1945 and then enforce that organization from the 24th October 1945. 24 अक्टूबर 1945 को ये इन्फोर्समेंट में आया. तो इनेक्ट हुआ आपका 26 जनवरी 1945 में और इन्फोर्स हुआ 24 अक्टूबर 1945 में. और विद इन दैट डेट 24 अक्टूबर इज आल्सो बी नॉमिनेटेड एट अ यूनाइटेड नेशन डे. गेट इट? इफ नाउ वी डिस्कस अबाउट द origins of the United Nations. कि UN is not just a form within a blink. It's not it's a over the night concept. There's a long treaties are come which are slowly make the treaties and decide to form a specific organization. Like the first we are come with the London Declaration. You have to be go through with the series. आपको इसी सीरीज में याद रखने हैं कि
पहले लंदन डिक्लेरेशन आया, देन देयर इज अटलांटिक चार्टर इन 1941, मॉस्को इन 1943, and the Oaks, Dumbarton Oaks is 1944, Yalta in 1945, and then we come with the San Francisco 1945. In a June San Francisco 1945. So these are the series where the so many countries come together and the so many time they discuss about to make some better organization from the League of Nations. League of Nations उस time पे already picture में थी, but it not be satisfied the every nation that we didn't require any other organization. It not be satisfied to be establishment of the peace. It not be satisfied with the every nation on a ground of equality, on the eyes of equality. तो वहाँ पे सब नेशंस के बीच में थोड़ी थोड़ी चर्चा स्टार्ट हो गई थी कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन ना हो। लीग ऑफ नेशन जिसका मेजर मोटिव था पीस एस्टेब्लिश करना, वही एक मेजर रीजन बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। एंड बाय टचवुड द यूनाइटेड नेशन नाउ ऑनवर्ड्स टिल नाउ इट्स गेट द सक्सेस टू स्टॉप द थर्ड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम अर्थ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो काफ़ी यूनाइटेड नेशन काफ़ी हद तक अपने उस ऑब्जेक्ट में सक्सेसफुल रहा कि सबको उसने मॉनिटर भी कर रखा है, इवन सेटिस्फाइड भी कर रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ privileges. They give the all equal treatment with everyone, and the every nation are quite satisfied with the United Nations. ठीक है, तो you just have to be memorize this list of series. लंदन डिक्लेरेशन 1941, डायरेक्टली क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस क्रिएट हो आ जाते हैं या फिर ईयर्स वाइज मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, तो यू वेरी पंक्चुअल विद इट कि लंदन डिक्लेरेशन 1941, देन अटलांटिक चार्टर इन 1941 अगस्त, मॉस्को डिक्लेरेशन अक्टूबर 1943, डम्बर्टन कॉन्फ्रेंस 1944, येल्टा कॉन्फ्रेंस इन 1945, एंड द सेम इज द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन द 1945. Now we discuss about the important features and the principle of the United Nations. Simply that the United Nations completely based upon the norms and values of humanity. United Nations always we discuss about the concept of humanity. They are never we think about the state. They never we think about the welfare of a some specific state or group of states, group of country. Not. They said that the whole world have are the made by a human being and we are now come for the welfarement of a human being. हम ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। हम नैतिकता का आधार किसी राज्य के कल्चर पे या फिर किसी देश की परिस्थिति और कल्चर पे नहीं होगा। नैतिकता का आधार व्यक्ति की और मानवता के सिद्धांत पे होगा। हम किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक के ऊपर बात नहीं करेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड का एक लिविंग स्टैंडर्ड हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में एजुकेशन पॉलिसी हो, आपका लिटरेसी रेट अच्छा हो, सेक्स रेशियो सही हो, जेंडर इक्वालिटी हो। वी आर डिस्कस अपॉन ऑन द दैट थिंग। और जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं दे विल हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। जो ऑलरेडी विकसित राज्य हैं, विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों की मदद करेंगे। On that concept the United Nations come in picture. That's why it help to be make the equality with all members. Sovereign equality कि सारे members ही अपने आप में सुप्रीम है और सभी इक्वल हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं है एक दूसरे पे। और आप इजीली डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। देयर इज अ नो कंसेप्ट ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस, देयर इज अ नो कंसेप्ट ऑफ द थ्रेट एंड फोर्स, and the member of the United Nations give the assistance to the every other member for their the charters. As per the UN charter जो सबसे पहले हमने 1945-26 जैन को जो क्रिएट करा, that UN charter become the constitution for the all United Nations members. कि they always be bind with the UN charter, they always be work with the humanity, work in the cooperation, work with the mutual consent, work with the majority discussions. There is a no concept of the threat, non-arbitrariness, and anything which are not in favor of a peace and the humanity. That is with the principles. Now if I discuss about the members of the United Nations, तो भाई 51 countries तो already इसकी starting member ही थे, ठीक है। Now after that there is a till now 193 members of the United Nations have been now, and the last 193rd member जो थे वो साउथ सूडान थे। तो रिमेंबर दैट नेशन नेम कि लास्ट मेंबर कौन ऐड हुआ है 2011 में, साउथ सूडान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना। अच्छा, मेंबर की जो क्राइटेरिया है सिंपली लाइक दैट कि जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी वोट से आपको मेंबर बना दिया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यू जस्ट नाउ बी
गेट विद द नेम्स की एक जनरल असेंबली है, एक सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी वोट्स के साथ अगर उसके सपोर्ट में होते हैं तो उसे मेंबर बना दिया जाएगा यूनाइटेड नेशन का। टिल नाउ इट द 193 मेंबर्स। और इंडिया जो था, जो स्टार्टिंग की वेरी फर्स्ट 51 कंट्रीज थी ना, उसी में इंडिया था, तो इंडिया तो स्टार्टिंग में मेंबर बन गया था। ठीक है। अदर थिंग इज अबाउट द बजट, कि भाई बजट तो मेजर रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए। तो ये जनरल असेंबली में एवरी 2 ईयर्स, विद इन एवरी 2 ईयर्स दे मेक अ बजट फॉर द होल वर्क ऑफ अ यूनाइटेड नेशन, कि भाई उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के लिए, एग्जीक्यूशंस के लिए, यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर्स के लिए और उनकी वर्किंग अप्रोप्रिएशंस के लिए वी मेक द कंसेप्ट ऑफ द बजट। एंड इन एवरी 2 ईयर वी आर डिस्कस विद दैट बजट, कि हर 2 साल में हम वो बजट प्रिपेयर करते हैं फॉर 2 ईयर्स का। जैसे इंडिया में तो हर 1 साल के लिए बजट बनता है, वहाँ पे 2 साल के लिए होता है। ठीक है। Then we are come with the UN Charter. UN Charter is that charter which are signed in June 1955 in a San Francisco. It's a complete constitution of the United Nations, and that United Nations constitution teach how the things is occur, how the work on the proceeding of the organizations are made, what are the main organs of the United Nations. तो 19 चैप्टर का ये आपका UN चार्टर है, एंड आई इन माई PDF आई गिव द कंप्लीट नेम ऑफ दीज ऑल चैप्टर्स। सो काइंडली बी गो थ्रू एंड मेमोराइज द ईच एंड एवरी चैप्टर। मैच द फॉलोइंग्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल किस में है, जनरल असेंबली किस में है। सो बी मेमोराइज इट, है ना। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई उसमें कुछ बताया जाएगा, यू हैव टू बी लर्न इट। नाउ वी कम विद द वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दैट इज द जनरल असेंबली। सबसे मेन ऑर्गन हमारा जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली जो है मेन डेलिब्रेटिव या फिर मैं कहूँगा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, विच आर लाइक डिस्कस अबाउट द ऑल वर्क, ऑल द फंक्शनिंग्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कोई भी डेवलपमेंट का मैटर है, इकोनॉमिक का, सोशल कल्चर का, डिस्कशन का, डिस्प्यूट का, दैट विल बी फर्स्ट कम विद द जनरल असेंबली। एंड एवरी मेंबर ऑफ ऑल 193 नेशंस आर द मेंबर ऑफ अ जनरल असेंबली, सिंपली लाइक दैट। इसका वर्क जो है स्टार्ट होगा, जो सेशन टाइम पीरियड हमने इसमें रखा है कि वैसे तो देखो सिक्योरिटी काउंसिल कभी भी जनरल असेंबली को कॉल कर सकती है ऑन इमरजेंसी बेसिस, बट द एवरी ईयर देयर इज अ ट्यूसडे ऑफ 3rd वीक ऑफ सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर मंथ के 3rd वीक का जो ट्यूसडे होगा उससे जनरल असेंबली की हर साल एक प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। इट मीन्स द एवरी मेंबर एटलीस्ट मीट देयर असेंबली इन एटलीस्ट वन टाइम इन अ ईयर, एक बार वो साल में जरूर मिलेंगे। ठीक है। जनरल असेंबली हर न्यू सेशन के साथ हर साल एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करा जाता है जनरल असेंबली का, और उसी के असेंबली के मेंबर्स ही मिलकर इलेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द president there the some of the other members of the other organizations and the chairperson and the vice president is also available with the general assembly. ठीक है। these all members is also be elected, some of them elected by the general assembly and some of the like judges of the international court of justice, security and the other secretariat and the other ones are the nominated by the security council, which we discuss about as per the topics are come। ठीक है। तो फंक्शंस क्या है, रिकमेंड करना, प्रिंसिपल कोऑपरेट करना, इंटरनेशनल पीस को मॉनिटर करना, डिस्कस करना इंटरनेशनल पीस के लिए हम और क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन और रिकमेंडेशंस को काउंटर करना है कि भाई लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या रिकमेंडेशन, व्हाट दे वांट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, व्हाट द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल लॉज आर फॉर्म नाउ। कि हर बार यूनाइटेड नेशन चेकआउट करता है कि भाई इस साल में जो नई ट्रीटीज हुई है उनका क्या ऑब्जेक्ट है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रेड वेलफेयर है या फिर कोई पाथ वेलफेयर है या फिर गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग है तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो सॉरी हाँ कब्जा करने की, आर्बिट्रेरी थिंग्स की, या फिर दैट थिंग विच आर प्रेडिटरी इन नेचर, देन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑलवेज वी टेक कंसर्न अबाउट कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है। रिकमेंडेशंस देते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल कोऑपरेशंस को, पीसफुल सेटलमेंट करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल्स के साथ अगर कोई रिपोर्ट है तो उस पर डिस्कशन करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं, एंड डी द ऑल अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेक द इंटरनेशनल पीस एंड रिक्वायर्ड फॉर स्मूथनिंग वर्किंग ऑफ द ऑल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। Get it? Then we come is the Security Council, the power head, powerhouse of the whole United Nation is the Security Council। हमारा power house जो है वो Security Council है, and Security Council is one of the major organ of United Nations।
इसमें दो तरीके के मेंबर हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट। तो जो परमानेंट है वो 5 मेंबर्स हैं, दैट आर द फिक्स्ड, दे नॉट बी चेंज। वेरी फर्स्ट इनिशियो से ही वो मेंबर फिक्स्ड है, दैट इज चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके एंड यूएसए। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल। स्टार्टिंग से यही परमानेंट मेंबर है, ना ये चेंज होते, ना हम किसी को ऐड कर सकते हैं एज अ परमानेंट मेंबर। और इन्हीं 5 मेंबर्स के पास ही वीटो पावर है। वीटो पावर इन द सेंस कि कोई भी एक्ट या फिर कोई भी चीज यूनाइटेड नेशन ने फॉर्म करी, किसी भी मेंबर को ऐड करना, किसी को निकालना है, कोई पॉलिसी बनाना, अगर उस चीज पे, उस एक्ट पे इनमें से पांचों में से कोई भी कंट्री अपनी वीटो पावर यूज कर ले, वीटो पावर इन द सेंस कि दे डिनाई टू गिव द कंसेंट ऑन दैट मैटर, दैट विल नॉट बी अलाउड टू अपहेल्ड। ठीक है, वो फिर इन्फोर्स में नहीं आ सकता। गेट इट? अपार्ट फ्रॉम दीज 5 मेंबर, दीज, हाँ क्या कुछ कह रहे थे आप? इन 5 मेंबर्स पे ना मैम एक स्पेशल पावर है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है इसके साथ कि वीटो इज द सुप्रीम पावर विद देमसेल्फ, कि अगर जनरल असेंबली ने सपोज कोई डिसीजन लिया और उसे वो इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, लेकिन इन 5 कंट्री में से किसी ने भी अपनी वीटो पावर यूज करके ये कह दी कि भाई मेरी इसमें कंसेंट नहीं है, तो फिर वो डिसीजन रद्द हो जाएगा, अवॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, उसमें किसी की इफ एंड बट नहीं होगी, कोई फर्दर डिस्कशन नहीं होगा। वीटो पावर मीन्स दे कैन बी यूज देयर वीटो पावर टू डिनाई एनी डिसीजन एक्ट ऑफ एनी पॉलिसीज ऑफ जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, किसी की भी हो, वो उस पर वीटो पावर लगा सकते हैं। ठीक है, then there is a non-permanent member, there is a 10 non-permanent member with the security council, और ये जो 10 non-permanent member है that are elected by the general assembly from time to time for a 2 years। 10 मेंबर 2 साल के लिए टाइम टू टाइम इलेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटी काउंसिल का वर्क क्या है भैया? मेन पावर हाउस है, मेन थ्रेटनिंग अथॉरिटी है, मेन रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी, तो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, डिसआर्मेंट्स को मेंटेन करती है। आर्मेमेंट्स इन द सेंस कि कौन सी कंट्री कितने आर्म्स डेवलप कर रही है, दैट विल बी ट्राई टू बी प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट द नेशंस टू मेक मोर आर्म्स एंड द मोर फर्दर आर्म्स विच आर क्रिएट अ फीलिंग ऑफ थ्रेट। देखो सिंपल सा क्या है कि कंट्री चाहे कोई भी हो, आप अगर हथियार बना रहे हो, सपोज अगर हमारी नेबर कंट्री आर्म्स कलेक्ट कर रही है, तो वो डेफिनेटली सम टाइप थ्रेट कम विद अस कि भाई क्या पता कल को हम पे हमला कर दें, फिर हम भी आर्म्स बनाने लग जाएंगे, फिर दूसरी कंट्री और आर्म्स बनाएगी, फिर हम और आर्म्स बनाएंगे, तो इससे तो एक लड़ाई छिड़ जाएगी, कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन हो जाएगी, जहां हम आर्म्स पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और सोशल डेवलपमेंट के बारे में कम सोच रहे हैं, जैसा कि बहुत सी कंट्रीज के साथ होता है। लाइक पाकिस्तान, अपने पास खाने को उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आर्म्स जरूर कलेक्ट करने, वेपन जरूर कलेक्ट करने। ठीक है, तो उस चीज़ को कम करना है। डिसआर्मेंट एक कंसेप्ट है जिसमें यूनाइटेड नेशन का एक मूवमेंट टाइप कंसेप्ट रहा, जहाँ पे सभी कंट्री से ये एक्सपेक्ट कराया गया है कि आप सभी अपने यहाँ जाएंगे और जो आपके अपने ऑलरेडी एक्यूपाइड आर्म्स हैं, यू विल बी डिसआर्म इट, यू विल बी डिसेंबल इट, उन सबको आप ख़त्म करेंगे, रद्द करेंगे खुद ही। इस मुहिम में काफ़ी कंट्रीज़ ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इवन उन्होंने अपने वेपन्स एंड आर्म्स को डिसेंबल करा या फिर उनको ख़राब करा कि आज से हम इनका यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज़ द मेजर थिंग विच आर यूज बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। अपार्ट फ्रॉम देम वो डिस्प्यूट को सेटल करते हैं इन अ पीसफुल मैनर, एडजुडिकेट करते हैं, डिस्प्यूट को हेयर करते हैं, थ्रेट क्रिएट करते हैं टू मेक द पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन। वो सम टाइप ऑफ सुपरविजनरी अथॉरिटी यूज करती है पीस कलेक्ट करने के लिए, पीस रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, पीस को मेंटेन करते हैं। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को अपॉइंट करते हैं, और कोई फर्दर मेंबर अगर जनरल असेंबली या किसी ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉइंट होना है, दे विल बी डू इट एडमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जनरल असेंबली। ठीक है, एक यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, आई डिडंट राइट हियर क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था, यू जस्ट टू बी मेमोराइज इट, कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स है एक, या तो मैं पीस कीपिंग फोर्स कहूँगा या फिर ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं आप। ये क्या है कि यूएन की एक फोर्स है। अच्छा, यूएन के पास अपनी कोई फोर्स नहीं है, बस उसके जो मेंबर्स हैं वो उसको एक एज अ टाइप ऑफ मिलिट्री एड्स प्रोवाइड करते हैं, और दैट पीस कीपिंग फोर्स आर यूज टू बी, सपोज दे कि किसी दो नेशंस के बीच में लड़ाई हो रही है
और both of them approached to the United Nations ki kindly ended, then the UN come in picture and settle down the whole dispute and send their military to on the ground and said now there is a no arms will be used. दोनों के बीच में एक सिचुएशन ऐसी होती है ना कि भाई मैं भी नहीं मारूंगा, क्या आप मुझे कॉन्फिडेंस दे दो वो नहीं मारेगा, फिर दूसरा बंदा भी कह रहा है कि भाई मैं तो अब कुछ नहीं करूंगा, आप ये तो कॉन्फिडेंस दो कि वो भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डर दोनों के मन में है. आर वॉर सिचुएशन में आप खड़े हो, वॉर ग्राउंड पे खड़े हो, आप विश्वास कर ही नहीं सकते कि दूसरी पार्टी ने सरेंडर कर दिए अनटिल अनलेस वो सरेंडर आपको नहीं करे. तो वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाती है, वो कहती है कि अब हम खड़े हैं बीच में, किसी को कोई कुछ नहीं करेगा. ठीक है जी, दैट इज अ यूएन पीस कीपिंग फोर्स. बट इट ऑलवेज भी, अच्छा ये इतना मेजर कंसेप्ट था नहीं क्योंकि एज सच अलाउड नहीं हो पाता. जब तक दोनों कंट्रीज नहीं चाहती ना तब तक यूएन पीस कीपिंग फोर्स कुछ नहीं कर सकती. और अगर वो दोनों कंट्री नहीं चाहती फिर भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स अपना डिप्लॉय होती है तो भैया वो तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन होगी, क्योंकि दो कंट्री तो ऑलरेडी आपस में लड़ रही हैं. आपने एक फोर्स और ज़्यादा और डिप्लॉय करती जिसमें अलग अलग कंट्रीज के सोल्जर्स हैं, तो वर्ल्ड वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे. तो ठीक है, तो दैट्स वाई सिक्योरिटी काउंसिल ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग एंड ट्राई टू बी वेट फ्रॉम द नेशंस दैट दे विल कम एंड अप्रोच अस. जब नेशन खुद अप्रोच करेंगे तब वो इसको यूज करते हैं. Now there is a second organ with the United Nations is the Economic and Social Council. These are the 54 members of a General Assembly make a concept of the Economic and Social Council, and these are made for 3 years. Every member are appointed for 3 years. 3 साल के लिए होते हैं, उसके बाद एक नई काउंसिल के लिए होती है. सिंपली इकोनॉमिक एंड सोशल रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए उन्होंने एक अलग से काउंसिल बनाई जिसे हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं. आपका कोई इकोनॉमिक इशू है, कोई ट्रेड रिलेटेड है, कोई फंडामेंटल फ्रीडम्स के रिगार्डिंग है कि मैं वहाँ जॉब नहीं कर सकता, कोई ट्रीटीज़ आपने ऐसी क्रिएट कर ली कि कोई अदर कंट्री ट्रेड ही नहीं कर पा रही, दूसरे लोगों को वहाँ पे जाने का अधिकार नहीं मिल रहा, सोशल राइट उनके इन्फ्रिंज हो रही है, दैट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कम इन पिक्चर. दिस सुपरवाइज एंड डू द वर्क ऑफ द advisory work and do the work of to console the human rights and the all fundamental rights. Proper trading, proper marketing are available with the everyone. Proper fair competition in market should be available with the everyone. किसी भी कंट्री में दूसरी कंट्री के खिलाफ कोई इलॉजिकल या फिर एंटी कंपटीशन एक्टिविटी ना हो. एक आपने सुना है एंटी डंपिंग. एंटी डंपिंग इज लाइक दैट कि सपोज आपकी कंट्री है, आपकी कंट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है 10 रुपये का और आप उसकी सप्लाई कर रहे हो इंडिया में. तो इंडिया में आप सप्लाई कर रहे हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 10 रुपये की है, तो कम से कम 12 या 13 रुपये का तो आप दोगे ताकि 2 रुपये के मार्जिन के साथ आप प्रॉफिट जनरेट कर सको. तो यहाँ तक तो ठीक है कि ऐसे अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं. और इंडिया में सेम प्रोडक्ट और भी कंपनीज बनाती हैं, वो कोई 12 का दे रहा है, कोई 13 का दे रहा है, नो इशू विद दैट. नाउ यू व्हाट यू डू कि वो 10 रुपये का प्रोडक्ट आपने इंडिया में लॉन्च कर दिया 5 रुपये में और आप 50% लॉस में जा रहे हैं. इंटेंशनली आपने ऐसा करा ताकि इंडिया की मार्केट क्रैश हो जाए, बाकी जो कंपिटिटिव कंट्री हैं वो क्रैश हो जाए, उन पर कोई प्रॉफिट जनरेट ना हो, वो बंद हो जाए. जैसे ही वो बंद हो जाएंगी तो इसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी. भाई हमारी जो कंपनी, हमारी तो छोटी छोटी कंपनी है, आपकी एमएनसी कंपनी है, बड़ा बजट है, तो वो तो 2-4 साल तक लॉस भी झेल लेगी, ये लॉस बियर नहीं कर पाएंगी. तो दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग कि आपने अपना माल हमारे डंप कर दिया, जबरदस्ती गिर दिया अननेसेसरी. So that is also not allowed. That type of things, that type of activity are measured by the Economic and the Social Council. ठीक है. एक ये छोटा सा कंसेप्ट है ट्रस्टशिप काउंसिल का. अच्छा, ट्रस्टशिप काउंसिल जो है इट्स नॉट इन फोर्स नाउ. ये सिचुएशन क्या थी कि 1945 when the United Nations come and they also make the trustship council and that council doing the work to create a independent state. ट्रस्ट क्रिएट करते थे कि आप अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टेट, सेल्फ गवर्नेंस आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी थी जो आज भी गुलाम थी. लाइक इंडिया ही थी उनमें से. 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, तो उस गुलामी में जब नया कोई इंडिपेंडेंट कंट्री क्रिएट हो रही है, हेल्प बाय द यूनाइटेड नेशन टू दीज कंट्रीज. सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही बनाई गई थी ट्रस्टशिप काउंसिल. 5 मेंबर ही थे जो आपके परमानेंट मेंबर थे ना सिक्योरिटी काउंसिल के, वो इसके मेंबर थे. एंड दे व्हाट दे आर डू कि दे आर जस्ट कम गो विद द कंट्रीज एंड
help them who recently get the independence, who recently get free from all type of अनवांटेड रूलर्स. किसी पे राजा का शासन चल रहा है, लोग परेशान है, डेमोक्रेसी चाहते हैं, और सडनली राजा का शासन तानाशाही खत्म हुई है, डाउनवर्ड डेमोक्रेसी कॉमन पिक्चर. सो दीज ट्रस्टिव काउंसिल हेल्प देम टू मेक द लॉ विद देम सेल्फ, टू बी स्टेबल विद देम सेल्फ, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए. ठीक है. तो 31 अक्टूबर 1994 को आई थिंक इसका लास्ट वर्क रहा ट्रस्टीशिप काउंसिल का. एक इन्होंने लास्ट स्टेट क्रिएट करा. लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट स्टेट. इट्स बाय द पैसिफिक आइलैंड. लास्ट जो ट्रस्टीशिप काउंसिल ने जो स्टेट कंट्री को एक स्टेबिलिटी दिलाई, दैट इज द पैसिफिक आइलैंड, है ना, 31 अक्टूबर को आई थिंक. उसके बाद 1 नवंबर 1994 को इसे डिसॉल्व कर दिया गया. एज सच डिसॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि देखो 5 वो परमानेंट मेंबर है, वो तो आज भी अवेलेबल है. बस इसे नॉन वर्किंग में कर दिया गया. अगर कोई एक्सट्रीम और अनवांटेड सिचुएशन फिर द्वारा क्रिएट होती है और इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो देन दे विल बी कम इन पिक्चर. क्योंकि 1994 तक मोस्टली सारी कंट्रीज आज़ाद हो चुकी थी, तो वो सिचुएशन अब इसकी जरूरत नहीं रही. ठीक है. और जो 45 to 50-60 का जो दौर था ना, 1945 से लेकर 1950 तक का, उसमें मल्टीपल कंट्रीज गेट द इंडिपेंडेंस. सो मैनी कंट्रीज. 1945 से 60 लगा लीजिए आप, 60 में काफ़ी सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली थी. सो दैट्स वाई वी रिक्वायर द ट्रस्टीशिप काउंसिल. दैट काउंसिल गिव द ट्रस्ट, गिव द कॉन्फिडेंस टू टेरिटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, दैट नेशंस हु रिसेंटली कम इन पिक्चर. ठीक है. एक तरीके से आप ऐसा भी कह सकते हैं, भैया ये मार्केटिंग कमेटी वाले थे, नए नए मेंबर ज्वाइन करवा रहे थे, है ना, कह सकते हैं नहीं. क्योंकि नई कंट्री कोई आज़ाद हुई, भैया आ जा यूएन का मेंबर बन जा. क्या मिलेगा जी यूएन का मेंबर? हम तेरी मदद करेंगे, तुझे सिक्योरिटी देंगे, वो यूएन का मेंबर से फायदा मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट वी कम विद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो भैया आपने ऑर्गेनाइजेशन बना दी, पार्लियामेंट की तरह एक कमेटी बना दी, सिक्योरिटी काउंसिल बना दी एग्जीक्यूशन के लिए. नाउ वी मेक द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, नाउ वी रिक्वायर द जुडिशरी. So to set out the dispute in a legal manner and give to the legal touch, courts, give to the court legal touch, give to the appellate type authorities, we make the concept of the International Court of Justice in 1945 in the Netherlands. नीदरलैंड के शहर हेग्यू में हमने पहली बार 1945 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्रिएट करा. Till now, what the concept with the International Court of Justice, there is a 15 judges are available, and that 15 judges are appointed by the Security Council with the recommendation of the General Council. Security Council द्वारा ये अपॉइंट करे जाते हैं for 9 year, 9 साल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में these are the member are appointed. ठीक है. Let me check one thing. हाँ, and these member can be re-elect also. दैट विल बी नोटेड दैट कि ये री इलेक्ट भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक बार आप आईसीजे के जज बन गए तो उसके बाद होंगे. लेकिन एक पीरियड ये भी है, एक बात ये भी है कि जब तक आप 9 साल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रहेंगे, तब तक आप कोई और ऑफिस या बियर नहीं कर सकते. जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस कोई और ऑफिस बियर नहीं कर सकते ना. सिंपल इज लाइक दैट. अपार्ट फ्रॉम देयर इज अ नेम ऑनरेबल जस्टिस दलवीर भंडारी. ही इज द वन ऑफ द पर्सन हु रिप्रेजेंट द इंडिया इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज अ जज. तो इंडिया से अभी तक एक ही जज बने हैं, दलवीर भंडारी. और जो प्रेजेंटेशन होगा, इन 15 जो जजेस रहेंगे, ये टाइम टू टाइम एज पर द फ्लो के साथ ही आएंगे कि अब इस कंट्री से 15, अब इनसे, अब इनसे, अब इनसे. एक कंट्री के दो जजेस नहीं हो सकते. एक कंट्री का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटर होगा. ठीक है. तो एक कंट्री से एक रहे तो आज पहले इन 15 कंट्रीज के लिए लेते हैं, फिर इनके, फिर इनके, फिर इनके. तो ऐसे सबको ये टाइम टू टाइम ये हम चॉइस देंगे. सॉरी. सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. और एज सच इनके पास कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है. दे आर प्राइमरली हाँ, तो दे आर प्राइमरली वर्क ऑन द बेस्ड ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो नेचुरल जस्टिस पे. और एक है इनके पास ट्रीटी कि किसी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रखा है, तो वो उस एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे,
उस एग्रीमेंट ने जो लॉ क्रिएट कर रखा उस लॉ के हिसाब से डिसीजन आ जाएगा। या फिर जो नेचुरल जस्टिस कहता है वो कि दोनों को सुना जाए, रूल ऑफ लॉ अप्लाई हो, इक्वालिटी हो, सबको उनके प्रिंसिपल्स के अनुसार सुना जाए। कस्टम इज आल्सो प्ले अ रोल इन द केसेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें कस्टम भी एक रोल प्ले करता है कि उन दोनों कंट्रीज के बीच में कस्टम क्या है। देखो मैटर एक चीज़ है कि भाई ऐसा चलता है, ऐसा होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। एक कस्टम होता है कि भाई हम तो सालों साल से यही चीज़ करते आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है दोनों पार्टी को एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सालों से चीज़ चली आ रही है, तो वहाँ से ये आ रही होगी तो इस तरीके की पैकिंग में आ रही होगी, और यहाँ से जाएगी तो इस तरीके की पैकिंग में जाएगी। तो वो अगर वो आप फुलफिल नहीं करते तो मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट उसी एक्सपेक्टेशन में करा था। तो कोड इज आल्सो बी गेट द सोर्स फ्रॉम द कस्टम। ठीक है, नाउ वी कम विद द केसेस। हाँ, केसेस थोड़े से केसेस का आपको नाम याद रखना है मैच द फॉलोइंग्स के लिए। यू जस्ट हैव टू बी मेमोराइज द नेम ऑफ दीज केसेस एंड सम ऑफ द केसेस आर आल्सो अदर आर अवेलेबल विच आई गिव टू द लिस्ट टू यू इन माई शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट। ठीक है, सो असाइलम केस। हाँ बताइए। केसेस के बारे में थोड़ा बताओ सर, मेरे को तो ये याद नहीं हो रहा। एक्चुअली डिस्कस तो हम काफ़ी कर लेंगे बट इट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, है ना। तो उसमें फिर उस चीज़ में जाना बेकार है, क्योंकि लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी बड़ी होगी, और जो यहाँ पे जो मैंने 5-6 केसेस दे रखे प्राइमरी इन्हीं में से आने। देखो एक चीज़ और थी, जैसे ऑब्जेक्टिव में ना 4 ऑब्जेक्टिव आए आपके पास, A B C D, तो एक डिस्क्वालिफाइड रूल होता है, कई बार आंसर नहीं पता होता, है ना। तो हम डिस्क्वालीफाई रूल लगाते हैं कि भाई बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो ए हो जाएगा। ठीक है, हमें श्योर नहीं है कि ये आंसर है, पर हमें ये जरूर श्योर है कि ये 3 तो नहीं है, या फिर बी सी नहीं है तो डी ए में से डिसाइड कर लेंगे। तो फॉर दैट वी हैव टू मेमोराइज इट सिंपली। कि असाइलम केस है, इस कोलंबिया वर्सेस पेरू के बीच में कोई डिस्कशन होगा कि असाइलम के ऊपर रूल क्रिएट हुए, कोई इनका किसी का कोई कल्प्रेट एक्यूज किसी कंट्री में चला गया होगा कोलंबिया और पेरू के बीच में, एंड देन दे क्रिएट द रूल्स की असाइलम के रिगार्डिंग क्या रूल्स होंगे। तो दैट इज असाइलम केस कोलंबिया वर्सेस पेरू। फिशरीज जुरिडिक्शन केस यूके एंड नॉर्थन आयरलैंड आइसलैंड, 2 कंट्रीज के बीच में केस रहा फिशरीज जुरिडिक्शन केस। दे आर डिस्कस अबाउट द यूके, आइसलैंड और आयरलैंड के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होगा कि वट वेयर फ्रॉम वेयर द जैसे जुरिडिक्शन कहाँ तक रहेगी फिशरीज की। हमारे साथ में होता श्रीलंका और इंडिया के साथ बड़ा चलता रहता है, वो कहता है कि भाई यहाँ तक हमारे मछुआरे जाएंगे, वहाँ तक हमारे जाएंगे। तो दैट इज द जुरिडिक्शन कॉज आर कम इन दैट केसेस। अपार्ट फ्रॉम देयर इज अ रेपरेशन, इतने ही थे, 1-2-3 केस और थे, आई डिडंट ऐड इन लिस्ट आई थिंक। तो रेपरेशन केस है, ICJ held the UN is a legal person, सॉरी इस केस में रिपार्शन केस में उन्होंने ये डिसाइड करा कि यूनाइटेड नेशन भी लीगल पर्सन है। ठीक है, देन देयर इज अ वेस्टर्न सहारा केस हेल्ड एट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बिकम द बाइंडिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। कि सपोज वेस्टर्न सहारा केस में ये रहा कि जो एडवाइजरी ओपिनियन है ICJ की, वो यूनाइटेड नेशन के साथ भी एक बाइंडिंग नेचर फोर्स करेगी, और जो कंट्री एडवाइस ले रही है उस पर भी उसका बाइंडिंग नेचर रहेगा, इवन उन कंट्रीज में जहाँ पे वो रूल भी करती है। जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर पे कोई उन्होंने जजमेंट दी, तो ब्रिटिश एम्पायर जिन जिन कंट्रीज पे रूल कर रही है उस कंट्रीज पे भी वही जजमेंट बाउंड करेगी। ठीक है, 2-3 केस और थे, आई डिडंट ऐड। एक तो ये था नॉटम बॉम्ब केसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनैलिटी केस था ये, है ना, तो इसे जरूर याद रखना। आई गिव द PDF विच आई शेयर विद यू इन माई टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मेंशन है नॉटो बॉम्ब केसेस फॉर द नेशनैलिटी। इसमें डिस्कशन हुआ कि नेशनैलिटी कैसे डिसाइड करेंगे किसी सिटीजन की। सपोज कि एक वो इलीगल इमिग्रेंट्स वाला जो कंसेप्ट था कि दे आर सेज कि सपोज पाकिस्तान से कोई इमिग्रेंट भाग गया, इंडिया आ गया, इंडिया की नेशनलिटी उसे मिली नहीं, पाकिस्तान की वो चाहता नहीं, अब भैया कैसे नेशनलिटी डिसाइड हो उसकी। तो in that case the Notre Dame case come in picture and they give the rules and the modification regarding the how to be recognized the nationality। उन्होंने स्टेटलेस का एक कंसेप्ट दिया कि जरूरी नहीं है कि नेशनलिटी सबके साथ हो,
दिस वाई वी रिक्वायर्ड टू क्रिएट द नेशनैलिटी। स्टेटलेस भी तो हो सकता है कि किसी का भी व्यक्ति नहीं हो, हाँ बनना जरूर भारत का चाहता हूँ, भारत अगर दे देता है तो नागरिकता, तो भारत ने प्रोविजंस दे रखे हैं, तो भारत अगर कुछ टाइम के लिए तो मुझे वैसे असाइलम दे दे, बाद में मुझे सिटीजनशिप दे दी, दैट इज द केसेस। ठीक है, और नेशनैलिटी का जो कंसेप्ट है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि सपोज कोई कंट्री कहती है कि भाई किसी ना किसी की सिटीजन हो तो ही हम आपको रखेंगे, नहीं हम रखेंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन कोई कंट्री कहती है कि कोई बात ना तू रह ले, अभी मैं तुझे असाइलम दे देता हूँ, बाद में सिटीजनशिप का जैसे तू अगर फुलफिल कर देता है क्राइटेरिया तो सिटीजनशिप ले लियो। ठीक है, सो दैट इज द ICJ। नाउ वी कम विद द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल क्या है कि जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में पहले देखा एक सेक्रेटरीट होता है ना, सचिवालय जैसे कहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे एक सेक्रेटरीट है यूएन का सेक्रेटरीट, कि यूएन की सारी वर्किंग कैसे होगी, वो कैसे फॉर्मेशन करेगा, लेटर्स देना, लेटर्स आना, मेल करना, नेशंस को रिपोर्ट करना कि भाई फला दिन मीटिंग है, आप सब आ जाना, इस टाइम पे मीटिंग है, इस सब्जेक्ट मैटर पे है, रिपोर्ट्स देना, रिपोर्ट्स कलेक्ट करना, फीडबैक देना, पॉलिसीज़ को मॉनिटर करना, दैट आर डन बाय द सेक्रेटरी जनरल। जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो सेक्रेटरी द्वारा करा जाता है, और सेक्रेटरी के जो हेड है उसे हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। ही इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है यूएन का। ठीक है, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है यूएन का, एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चार्ज फॉर द प्रमोशन ऑफ एडिंग स्टेट टू कलेक्टिवली मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब क्या है कि आपने यूनाइटेड नेशन क्रिएट कर लिया तो भाई फ्री तो ये चलेगा नहीं, यू हैव टू बी गिव सम अमाउंट ऑफ मनी। भाई इतनी बड़ी व्यवस्था वो लोग करते हैं, हर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आके वहाँ बैठते हैं, सिक्योरिटी, फंक्शनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल अदर स्टफ्स विच वट एवर बी रिक्वायर्ड, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट वगैरह जो पे करना होगा, या फिर जो भी इनकी पॉलिसीज होगी, दैट आर बी हेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेसी उस पर वर्क करती है। ठीक है, कि क्या पॉलिसीज रहेगी, कौन कौन कंट्री कितने पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ये रहता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादा देंगी ताकि डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करा जा सके वो पैसा। ठीक है, दैट ऑल थिंग्स ऑफ द रिकॉर्ड आर मेजर्ड बाय द सेक्रेटरी जनरल एंड सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जनरल आपके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इनमें कैपेसिटी है किसी भी यूएन के किसी भी ऑर्गन्स में मीटिंग बुलाने की, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, स्टैटिक्स देखते हैं, टॉप मोस्ट डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड हैं। वन लाइनर में काफ़ी आता है कि हु इज़ द टॉप मोस्ट डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड, सेक्रेटरी जनरल इज द टॉप मोस्ट डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, till now we covered the all organs regarding the United Nations. We left with the one things regarding the Universal Declaration of Human Rights. We will do it on tomorrow कि ह्यूमन राइट्स के बारे में। अब ये तो यहाँ तक हमने चीज़ें कवर करी कि क्या क्या ऑर्गन्स हैं और क्या क्या उनकी फंक्शनिंग्स हैं। अब नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द क्या क्या उन्होंने करा, कैसे कैसे उन्होंने करा, मेजर थिंग्स विच दे आर डू। ठीक है, यहाँ तक अब किसी का डाउट? Okay, then we end today's class. Thank you.